Hi everyone. We will continue our word problems of linear equations. Okay, our first question is the sum of three consecutive multiple of 8 is 888. Find the multiples. Firstly, we have to find three consecutive number. Consecutive number कौन से होते हैं? जैसे कि 1 2 3 3 4 5 जो कि लगातार होते हैं. लाइक x plus 1 x plus 2. Let three consecutive numbers are x plus 1 and x plus 2. But the next condition is multiple of 8. कि जो हमारे तीन consecutive number हैं वो 8 के multiple भी होने चाहिए. Then we will multiply these three numbers by 8. So 8x plus 1, 8 into x plus 2. So our three multiples are 8x plus 8, 8x plus 16. The next one is, but in these questions जैसे जैसे वो अपने को कमांड देता रहेगा यानी कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली वैसे वैसे हम इसको एक इक्वेशन में मोल्ड आउट करते जाएंगे. सो द नेक्स्ट वन इज कंडीशन. नेक्स्ट क्या है? अगेन रीड द स्टेटमेंट. द सम ऑफ these three consecutive multiple of 8 is 888. कि इन तीन मल्टीपल्स जो ये हमने लिए 8x plus 8, 8x plus 16, इनका सम जो है वो किसके इक्वल है? 888 के. लाइक दिस. सो 8x plus 8, 8x plus 16 is equal to 888. Then sum of these three numbers 8x plus 8, 8x plus 16 is equal to 888. सो हम x वाले टर्म्स है जो वो अलग कर लेंगे. वी हैव टू separate the terms of x because this is a variable. So जो हमने x वाले टर्म्स है वो अलग कर लिए हैं. बाकी 8 plus 16 लेफ्ट है. कांस्टेंट जो है 8 और 16 ही है इसमें. सो 8 plus 16 is equal to 888. So sum of these three 8s is equal to 24x. 8 plus 16 is also 24, which is equal to 888. So 24x is equal to 888 minus 24, which is equal to 864. So 24x is equal to 864. Then x is equal to 864 upon 24. We will cut on the same table. Firstly, we will cut on the table of 4. After that, we will cut on the table of 6. The answer is 36. You can divide if you want. बच्चे आप डिवाइड भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको कट ही करना है. सो x इज इक्वल टू 36 इज अवर आंसर. हमारे पास जस्ट x की वैल्यू आई है अभी, बट जो क्वेश्चन में है उसने क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? फाइंड आउट द मल्टीपल्स. सो अवर मल्टीपल्स आर 8 इंटू एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? 36, विच इज इक्वल टू 288. सो सेकेंड मल्टीपल इज 8 इंटू एक्स यानी कि 8 इंटू 36 प्लस 8, विच इज इक्वल टू 288 प्लस 8 इज इक्वल टू 296. द लास्ट वन इज 8 इंटू 36 प्लस 16, 288 प्लस 16, विच इज इक्वल टू 304. इज इट क्लियर बच्चे? सेम एज इन द नेक्स्ट इक्वेशन. The age of Rahul and Harun are in the ratio 7:5. पहले let the age of Rahul and Harun are 7x and 5x. The next is 4 years later. 4 साल बाद. अगर आपकी अभी एज 12 ईयर है तो आप 4 साल बाद यानी कि 4 साल बाद कितने ईयर्स के हो जाओगे? 16 ना. 4 ऐड करेंगे ना. सेम एज 4 ईयर later Rahul's age is 7x plus 4 and Arun's age is 5x plus 4. Now again read the statement. The age of Rahul and Arun are in the ratio 7:5. 4 years later the sum of their ages will be 56 year. क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे दी कि जो 4 ईयर लेटर उनकी एजेस है उसका सम है जो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 56 के इक्वल आएगा. सेम एज वेरिएबल्स को और जो कांस्टेंट है वो अलग अलग कलेक्ट कर लो.
So 7x plus 5x, 4 plus 4 is equal to 56. Here is 7 plus 5, 12x, 4 plus 4 is 8, which is equal to 56. 12x is equal to 56 minus 8, that is equal to 48. Here is 12x, so x is equal to 48 by 12, which is equal to 4. So x is equal to 4. Now again read the statement. What we have to find? What are their present ages? अब की उनकी एज क्या है जो हमने लेट करी थी 7x एंड 5x. सो राहुल से एज, राहुल्स present is 7x, which is equal to 7 into 4, 28 years. And Harun says, Harun की present age क्या आ जाएगी? That is equal to 5x. So 5 into 4, which is equal to 20 years. कि वो 28 ईयर्स का और ये 20 ईयर्स का. इज इट क्लियर? ओके, आई विल रिपीट कि जैसे जैसे स्टेटमेंट में बोला गया है वैसे वैसे ही करते जाना. द एज ऑफ राहुल एंड अरुण आर इन द रेशो. फर्स्टली वी हैव गिवन द रेशो, कन्वर्ट इट इनटू विद वेरिएबल like 7x and 5x. अगेन 4 year later, तो 4 year later उनकी एजेस क्या हो जाएंगी? 7x plus 4, 5x plus 4. The next is sum of their ages will be 56 year. तो उनका जो 4 year later 4 साल बाद जो उनकी एजेस का सम है वो क्या हो जाएगा? 56 year बन जाएगा. Then we will equal to the 56 year. Sum of these ages इक्वल टू द 56 ईयर. उनकी जो एजेस दी गई हैं उनका सम है जो हम 56 ईयर के इक्वल रख देंगे. वी हैव टू सोल्व दिस इक्वेशन. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स इज इक्वल टू 4 ईयर. जो हमारी जनरल एज आई है वो क्या आई है? 4 ईयर आई है. तो हम उनको प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है. तो प्रेजेंट एज हमारे पास क्या थी? 7x और 5x, जो कि राहुल की क्या है? 7x है, हरून की 5x है. सो वी विल हैव टू फाइंड आउट द एजेस. Is it okay? The next question is, now बच्चे ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना. 15 years from now, कि अब के बाद 15 साल रवि की एज विल बी क्या हो जाएगी? 4 times his present age. Then find his present age. क्या हमें फाइंड आउट करना है कि उसकी प्रेजेंट एज क्या है. अगेन रिपीट द स्टेटमेंट. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. So find his present age. Yes, let the present age of रवि इज एक्स. हम मान लेते, सपोज कर लेते कि उसकी जो एज है एक्स ईयर्स है, जो प्रेजेंट एज है. देन 15 years लेटर, अब के 15 साल बाद, 15 years लेटर फ्रॉम नाउ मीन्स कि अब से 15 साल बाद. विल बी से पता चल जाएगा आपको कि ये इन फ्यूचर की बात कर रहे हैं. सो 15 years लेटर एज ऑफ रवि, 15 साल बाद रवि की एज क्या रहेगी? एक्स प्लस 15. जितनी अब है उसमें 15 ऐड कर देंगे. सो अगेन रिपीट, विल बी 4 times his present age. कि 15 साल बाद जो उसकी एज है वो किसके इक्वल आ जाएगी? 4 times ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो क्या कह रहा है?
कि जो उसकी 15 साल बाद एज है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 4 टाइम ऑफ हिज प्रेजेंट एज। That 4 into x is 4x, which is equal to x plus 15. So 15 is equal to 4x minus of x, which is equal to 3x is equal to 15. So x is equal to 15 upon 3, which is equal to 5. Now his present age is, हमारे पास जो x है वो किसके इक्वल आया, 5 के। So present age of Ravi is 5 years. Is it clear? Okay. Now the next question is, Lakshmi is a cashier in bank. लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है। She has currency, उसके पास करेंसी नोट्स हैं जिनकी डिनोमिनेशन क्या है, 100 रुपीज़, ₹50 एंड ₹10। कि उसके पास 3 टाइप के नोट्स हैं जिसमें 100 रुपये वाले नोट हैं, 50 रुपये वाले नोट हैं और 10 रुपये वाले नोट हैं। पर रिस्पेक्टिवली द रेशो ऑफ दीज नंबर्स ऑफ नोट्स इज़ 2:3:5। पर जो क्या है कि ये 3 तरह के नोट हैं जो उनको रेशोज़ में डिवाइड करा हुआ है कि ये 2:3:5 में है। सो लेट number of notes हैं 2x, 3x एंड 5x। कि जो 100 रुपीज़ के नोट हैं वो 2x है हमारे पास, सॉरी लक्ष्मी के पास। जो 50 रुपये वाले नोट हैं वो है 3x और जो 10 रुपये वाले नोट है वो है 5x। 2:3:5 दिया ना। So 2x, 3x and 5x. Now find the value of, firstly value of 100 rupee note. So 2x number of notes हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 200x। अगेन वैल्यू ऑफ 50 रुपी नोट, तो 50 रुपीज़ वाले नोट्स जो हैं वो कितने होंगे, 3x हैं। 3x multiplied by 50 which is equal to 1, 50x value of 10 रुपीज़ नोट। कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि इनकी वैल्यू कितनी। मान लो आपके पास 5 नोट हैं जो 10 रुपये के हैं, यानी कि 10 रुपीज़ वाले 10 रुपये वाले नोट्स हैं जो वो 5 हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 5 into 10 which is equal to 50। सेम एज अगर हमारे पास 10 रुपये वाले नोट 5x हैं तो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आएगी, 50x। इज इट क्लियर बच्चे? रिपीट, लेट द नंबर ऑफ नोट्स। पहले नंबर ऑफ नोट्स क्या है, रेशोज़ में गिवन है, सो हमें उसको रेशो को हटाकर वेरिएबल को लगाना है। 2x, 3x एंड 5x। सो वैल्यूज़ ऑफ these notes are 200x, 150x and 50x. Now read the statement again. The total cash with Lakshmi is ₹4 lakh. किसके पास टोटल जो कैश है वो कितना है, 4 लाख। How many notes of each denomination does she have? हमें ये बताना है कि अलग अलग डिनोमिनेशन, जैसे कि 100 रुपये वाले नोट कितने हैं, 50 वाले कितने हैं और 10 वाले कितने हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इन सब का सम, यानी कि टोटल जो इसका है वो लक्ष्मी के पास कितना है, 4 लाख। रुपीज़ 4 लाख। सो 200 + 150 + 50 which is equal to 400x, because these threes are मल्टीपल ऑफ x। x के मल्टीपल्स है तो तीनों को ऐड कर देंगे, क्या आएगा, 400x which is equal to ₹4 lakh। So x is equal to ₹4 lakh upon 400। कट करो, 2 zeros कट हो गई,
दैट विच इज़ इक्वल टू 1000. सो x इज इक्वल टू ₹1000. जो x की वैल्यू है वो कितनी आई है 1000. Firstly, we have to find out the value of x. Then after that, we have to find out the number of these notes. Is it clear? Now the number of 100 rupees notes. जो हमारे पास कितने थे 2 of x. So multiply by 1000. Why? Because of x is equal to 1000. क्योंकि x 1000 के इक्वल है, सो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, जो 100 रुपये वाले नोट कितने हैं उसके पास 2000. नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल टू 3x. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1000, 3000. एंड द लास्ट वन इज नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स is 5x. so 5 multiply 1000 which is equal to 5000. तो इसके पास जो नोट्स हैं, नंबर ऑफ नोट्स है वो कितने हैं 2000 हैं जो 100 रुपये वाले हैं, 3000 हैं जो 50 रुपये वाले हैं, 10 जो 5000 है वो 10 रुपये वाले हैं. ओके.